آرمی چیف کا کراچی واقعے پر نوٹس، کور کمانڈر کو فوری انکوائری اور جلد از جلد رپورٹ بھجوانے کی ہدایت۔ حالات کا جائزہ لیا جائے اور تمام حقائق سامنے لائے جائیں۔ سپاہ سالار کا حکم۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلاول بھٹو کو ٹیلی فون، پی پی چیئرمین کی جانب سے نوٹس پر اظہار تشکر۔ امن اور استحکام کے لیے بھاری قیمت ادا کی، ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششوں کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ سپاہ سالار کا 2 ٹوک پیغام۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، ہر حال میں جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا عزم۔ آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے۔ میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں۔ گورنر راج کر کے دکھاؤ۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، سندھ کے لوگوں کی بے عزتی۔ صبح 4 بجے آئی جی سندھ کو لے جانے والے 2 افراد کون تھے؟ پولیس افسران کی عزت کا سوال ہے، اسی لیے چھٹی پر جا رہے ہیں یا استعفے دے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت جاتی ہے تو جائے، ہم ادارے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، گورنر راج غیر قانونی ہے، لگا کر تو دکھاؤ، پی پی چیئرمین کا چیلنج۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس تھانے میں موجود تھے، بلکہ بڑی خوشی خوشی سے میں نے تصاویر دیکھی ہیں، کوئی ایف آئی آر کی کاپی فوٹو کھچوا رہے ہیں، اس میں سارے انوالو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، ایک وفاقی وزیر بھی جو بڑھ چڑھ کے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص سے، اور اس پہ 2 اور گواہ بھی پیش کیے کہ جی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے، وقاص نے کہا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، سازش میں تم شامل ہو، اب یہ انکوائری ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ یہ سمجھتے کہ قانون کو ایسے ہاتھ میں لے کے قائد اعظم کی مزار کا تقدس کس نے پامال کیا؟ ایک شخص کو اٹھا کے لائیں اور یہ ظاہر ہو گیا نا، وہ تو کورٹ نے کل ہی بیل دے دی، ظاہر ہو گیا کہ جھوٹا کیس بنایا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، سندھ حکومت کا انکوائری کا اعلان۔ واقعے میں ایک وفاقی وزیر ملوث، ضمانت سے ثابت ہو گیا کہ کیس جھوٹا تھا۔ تحریک انصاف نے مقدمے کے لیے دباؤ ڈالا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس، مدعی وقاص مزار قائد پر کیا کر رہا تھا؟ مراد علی شاہ کا مکمل تحقیقات کا اعلان۔ صاحب یہ بتا دیں آئی جی صاحب، شاہ صاحب آئی جی صاحب بتا دیں، آئی جی صاحب کیا اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب کیا آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب کیا آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ آپ کے حوالے سے کل پورے دن خبریں چلتی رہی ہیں، کیا آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب اس کا جواب تو دیں، آئی جی صاحب کیا اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب صرف یہ بتا دیں، آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا یا نہیں؟ دنیا نیوز کا وزیر اعلیٰ سندھ سے بار بار سوال، مراد علی شاہ جواب دیے بغیر ہی پریس کانفرنس سے چلے گئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا ڈراپ سین ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے مریم نواز کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے گرفتار کرایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس جواب ہونا چاہیے تھا۔ شہزاد اکبر کا ٹویٹ۔ مراد علی شاہ کی باتوں میں تضاد، وہ خود کلیئر نہیں، آپ دونوں طرف نہیں کھیل سکتے، منافقت بند کریں، جب جرم ہوا تو پھر کارروائی پر کس بات کی دہائی؟ وزیر اعلیٰ سندھ پورا سچ بولیں اور مانیں، خود ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ شہباز گل کی دنیا نیوز سے گفتگو۔
जिनको कभी हरमैन के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, जिनको कभी मज़ार क़ायद के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ सफदर साहब की ये कहने पर कि वोट को इज्जत दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। वो गलती तो शायद आदाब की हद तक होगी, लेकिन इनके जो रद्द-ए-अमल है उसमें तो आइन को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है, निरी बदमाशी है ये। तहरीक अब दोबारा खड़ी हो गई है, उससे आगे हालात और तेज़ होते जाएंगे, उसमें कोई नरमी की तवक्को न रखी जाए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने सिर्फ आदाब की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ खुद मज़ार क़ायद पर हुल्लड़बाजी करती रही है, कोई नरमी की तवक्को न रखे। तहरीक अब मजीद तेज होगी। मौलाना फजलुर रहमान की हैदराबाद में गुफ्तगू। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था। मैंने मादरे मिल्लत को कहा, जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान, मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। अगर माँ को इस्तदा करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म करते रहेंगे। मैं इस बात पे नहीं घबराया कि मेरा दरवाज़ा तोड़ा, वोट की इज्जत दिलवानी है। मैंने कहा मैं जाऊँगा, गिरफ्तारी भी दूंगा, सब कुछ करूँगा। मगर मैं आज परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा, वो किसकी तहवील में रहा। मादरे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाना कौन सा जुर्म है? बाबाए कौम के मजार पर चीख कर आया हूं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया। परेशान हूं, एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहां रहा? मुकद्दमों से डरने वाले नहीं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ललकार। गद्दारी के मुकदमे के बाद शाहदरा में ही एक और मुकदमा दर्ज। कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक करने पर भी एफआईआर कट गई। मरियम नवाज, मोहम्मद सफ्तर और दीगी लीगी रहनुमा नामजद। गुजरांवाला में भी पीटीएम जलसे की इंतजामिया के खिलाफ पर्चा हो गया। वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी। कौमी असेंबली में सीटियां बच गईं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत न मिली। ऑपोजिशन अरकान मुश्तिल गो के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। शोर न मचाएं, अपनी बारी का इंतजार करें। डिप्टी स्पीकर की सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश। ये 3 साल सीटियां ही बजाते रहेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। ऐवान में निजी कार्रवाई के रोज 22 बिल मौखर। काबीना अरकान सियासी खवातीन के हवाले से बयानात में एहतियात करें। वजीर आजम की हिदायत। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अशियाए जरूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी पर जोर। काबीना इजलास में महंगाई के मामले पर बहस। विफाकी वजीर बराए फूड एंड सिक्योरिटी से ताबड़तोड़ सवालात। वुज़रा ने फखर इमाम से टाइम फ्रेम मांग लिया। वजीर आजम का दौरा लाहौर। ऐवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात। सूबाई मामलात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की जेर सदारत आला सतह इजलास। पंजाब में बुनियादी अशिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा। वजीर आजम को रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम। अफगान अमन अमल से मुंसलिक तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ने देरपा अमन का मौका फराहम किया। वजीर आजम इमरान खान की गुलबदीन हिकमत यार से गुफ्तगू। मुलाकात का एलामिया जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की हाजिरी। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ का मेडिकल मुकम्मल। अपोजिशन लीडर को बी क्लास में रखा जाएगा। अखबार, कुर्सी, मेज और मैट्रेस की सहूलत। घर से खाना मंगवाने की इजाजत। महकमा दाखिला की सवाबदी।
शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ पानी कंपनी केस की इंक्वायरी बंद नहीं हुई। रेफरेंस ठोस शवाहिद पर बनाए गए, कयास आराइयां करने वाले अदालती फैसले का इंतजार करें, नैब का एलामिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास, रीजनल ब्यूरोज की मजमूई कारकर्दगी का जायजा, जेर समात मुकदमात की मुकम्मल तैयारी के साथ पैरवी की हिदायत, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है, जावेद इकबाल का इजहार ख्याल। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर, अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच कल मुकदमा सुनेगा। पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का इल्जाम, गुजरांवाला के थाना सैटेलाइट टाउन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद बिन नामजद, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। मुल्क में सियासी इंतकाम और मसनूई एहतसाब के ढोल की गूंज, शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी, जुलूसों के बाद हुकूमत के औसान खता हो गए, अवामी रद्देअमल आ चुका, नालायक टोलों से जल्द निजात मिलेगी, मरियम औरंगजेब का दावा। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन, ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद इमरान खान के सामने बेवकत है, करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अज़म। पुलिस पर 1,93,000 रुपए रिश्वत का इल्जाम, शौहर के खिलाफ झूठे मुकदमे की शिकायत, CCPO लाहौर टेलीफोन करने वाली खातून पर बरस पड़े, गुफ्तगू की ऑडियो टेप सामने आ गई, उमर शेख के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून ने फोन बंद कर दिया, ऑडियो टेप मेरे खिलाफ नया फसाना है, CCPO लाहौर का मौक़िफ़। कोरोना के बाद बरकरार 24 घंटे के दौरान मजीद 14 अफराद जान बहक, मुल्क भर में 3,24,084 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 9,461 हो गई। मोदी सरकार की तासुब पसंदी, भारत ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच लालचंद राजपूत को पाकिस्तान आने से रोक दिया, जिम्बाब्वे ने बॉलिंग कोच डगलस होंडो को हेड कोच का चार्ज दे दिया। मुल्क में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई, दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 T20 शेड्यूल, मेहमान स्क्वाड के कोरोना टेस्ट मुकम्मल, खिलाड़ी अगले 7 रोज आइसोलेशन में गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी से मुतालिक जो सूरत हाल पैदा हुई, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हिदायत की है कि वाक़े की फौरी इंक्वायरी शुरू की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े का नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने शफाफ इंक्वायरी पर आर्मी चीफ के अहकामात को सराहा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की इलाकाई सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अहवाल जानते हैं मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, 236वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की और इसमें जो है वो मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी बड़ा तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर भी बातचीत की गई। इसमें बिलखसूस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में बिलखसूस बलूचिस्तान और कबायली अजला
में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का जायजा लिया गया और शुरा कॉन्फ्रेंस से तमाम सिविल और मिलिट्री शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि हम सब ने अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ बार बार ये कहते आए हैं कि जो भी अमन और इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क के अंदर है वो शोहदा की कुर्बानियों के नतीजे में है और इसमें जो सिविल और मिलिट्री के शोहदा उनकी कुर्बानियां शामिल हैं और इस हवाले से ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बता रहे थे मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपका। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.